إلا نحن سيدك وإلا نحن أو كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. یہ جو قرآن کریم کی تلاوت روزمرہ کرتے ہیں اور ہم لوگ میں جو سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. قرآن کو جو سیکھے اور سکھائے دنیا میں سب سے بہتر وہی آدمی ہے. کہ قرآن کریم دنیا کی سب سے اہم اور سب سے بڑی کتاب ہے, اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم کو روزمرہ تلاوت کرنی بھی چاہیے اور انشاءاللہ ہم لوگ کرتے بھی ہیں. یہ قرآن کریم کس طریقے سے یاد ہوگا اور کس طریقے سے ہمارے سینے میں محفوظ رہے گا, اس کے لیے ہم کو 3 بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے اور اپنے دل و دماغ میں بیٹھانا بھی ہے. سب سے پہلی بات یہ قرآن کریم جو کتاب ہے اس کا ادب احترام بہت ضروری ہے. جس طریقے سے اپنے ہم جسم کے اوپر لباس پہنتے ہیں تو خوبصورت نظر آتے ہیں, اسی طریقے سے قرآن کریم کے ساتھ بھی ایک جزدان کا ہونا بہت ضروری ہے. کوئی بھی کپڑا ہو وہ قرآن کریم سے نہیں جڑا, جیسے جزدان اس کا نہیں بنا ہے تو وہ کپڑے کی کوئی اہمیت نہیں. لیکن وہ 10-20 روپے والا کپڑا ہو اس کا اگر جزدان بنا دیا جائے تو اس کی کتنی اہمیت ہو جاتی ہے. جاہل آدمی ہو یا پڑھے لکھے آدمی ہو کہیں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جزدان گرا ہوا ہے اس کو بہت اہمیت سے اٹھاتے ہیں. اسی طریقے سے استاد کا ادب احترام بہت ضروری ہے. اگر استاد کا ادب احترام کیجیے گا تو انشاءاللہ وہ علم حاصل ہوگا جو بہت کام آئے. دنیا میں جو کام آئے گا وہ تو الگ ہے, آخرت میں بھی وہ کام آئے گا. اور وہ علم جو حاصل ہوتا ہے وہ علم نافع کہلاتا ہے. اس علم سے آپ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ استاد کا ادب احترام نہیں کرتے ہیں تو آپ اچھے حافظ بھی ہو جائیے گا, اچھے قاری بھی ہو جائیے گا, اچھے عالم بھی اور مفتی بھی ہو جائیے گا, لیکن اس علم سے آپ دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے کیونکہ استاد کا آپ ادب احترام نہیں کیے, استاد کو آپ استاد نہیں سمجھے ہیں. خواہ وہ ناظرہ کے ہو یا حفظ کے ہو یا وہ مدرسے کے انتظامیہ میں سے ہو یا وہ کوئی باورچی ہو, کوئی بھی ہو جو مدرسے سے متعلق ہے, مدرسے سے منسلک ہے, اس کا ادب احترام ضروری ہے. اب آئیں قرآن کریم کو یاد کس طریقے سے کرنا ہے اور کس طریقے سے باقی رکھنا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کریم جو یاد کریں گے, جیسے وہ سبق والے بچے ہو تو اس کو چاہیے کہ اساتذہ کے پاس جا کے ناظرہ مکمل صحیح پڑھیں. اگر وہ ایک صفحہ پڑھتے ہیں تو وہ ناظرہ جا کے استاد کو سنائیں. اگر آپ کا ناظرہ مکمل درست ہوگا تبھی جا کے آپ مغرب بعد سبق آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں اور اچھا یاد بھی ہو جائے. اگر آپ کو سبق یاد ہوگا تو سبق یاد کرنے کے بعد, سبق سنانے کے بعد وہ 6 سبقے کی باری آتی ہے جس کو سبق پاڑھا کہا جاتا ہے, تو آپ کو سبق پاڑھا بھی یاد رہے گا اور یاد ہو جائے گا. اگر آپ سبق کمزور سنائے ہیں, سبق جیسے مرضی ویسے یاد کر کے سنا دیے ہیں تو سبق آپ کا کمزور ہے اور سبق آپ کا کمزور تھا, اسی لیے سبق پارہ میں بھی آپ کو محنت کی ضرورت پڑے گی اور سبق پارہ بھی آپ کا کمزور رہے گا. تو سبق کمزور تو سبق پارہ بھی کمزور. اس کے بعد امختہ سنانے کی باری آتی ہے, وہ امختہ بھی آپ کا کیا ہوگا, کمزور ہی رہے گا. اسی لیے چاہیے کہ ہم کو سبق جو ہے وہ مکمل یاد کر کے سنائیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم روز ایک سبق سناتے ہیں یا ایک رکوع سناتے ہیں تو اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہو, کوئی بھی غلطی نہیں ہو, نہ کوئی بھول ہو نہ کوئی اٹک. بس شروع کیے اور ختم کیے, تب جا کے انشاءاللہ وہ جو پارہ مکمل ہوگا وہ آپ کو یاد رہے گا. اور حافظ بننے کے بعد آپ کو یاد غور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. حافظ بننے کے بعد اللہ ماشاءاللہ 1-2 دور سنانے کی ضرورت پڑے گی,
या 6 महीना या साल भर सुनाने की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो अभी के दौर में होता क्या है कि हम आधा सफ़ा एक सफ़ा जैसे मर्जी वैसे ही सबक, मतलब जल्दी जल्दी सबक पढ़ के सबक पाने की कोई अहमियत नहीं, या मुफ्ता सुनाने का कोई पाबंदी नहीं। उससे ये होता है कि आप 2 साल में हाफिज़ बने हैं ना, तो 3 साल में आपको दौर करना पड़ेगा। 2 साल आपको हाफिज़ बनने में लगा है तो 3 साल दौर करने में लगेगा। और अभी के दौर में या वो छोटे मदारिस हो या बड़े मदारिस हो, यही हो रहा है। इसीलिए खूब मेहनत से पढ़िए और उस्ताद का अदब एहतराम, उस्ताद जैसे बताएं कि बाबू तुम ऐसे करो ऐसे करो, आमन्ना सद्दकना कर देना है। ये नहीं कि वो उस्ताद हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, कोई भी नहीं। अगर हमारे माँ बाप हैं वो तुम्हारी परवरिश किए, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आपको मदरसे के हवाले कर रहे हैं, तो आपको मदरसे के असातिज़ा ने आपको संवारा है ना, आपके अंदर जो भी इल्म है वो इसकी बदौलत उस्ताद तुम्हारे अंदर डाले हैं ना। इसीलिए उस्ताद का अदब एहतराम बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उस्ताद के अदब एहतराम। और कुरान करीम इसका भी अदब एहतराम बहुत ज़रूरी है। माशाअल्लाह ये थे हमारे बीच हज़रत हाफिज़ व क़ारी अमजद साहब, उस्ताद मदरसा तजवीज़ कुरान तैयबा चौपाल। बहुत ही कीमती बातें नसीहत कर रहे थे। अब मैं मुख्तसर लफ्ज़ों के लिए अपने गांव के रसूलपुर के मस्जिद बिलाल के इमाम खतीब क़ारी मोहम्मद सज्जाद साहब से भी गुजारिश करेंगे कि उन्होंने बच्चों को नसीहत फरमाएं तो हिफ्ज़ की क्या हिकमत है और कुरान की तालीम की क्या हिकमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मेरे अज़ीज़ तालिब इल्म, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान करम फज़ल हुआ कि अल्लाह ताला ने आप तमाम लोगों को तमाम कामों से मशगूलियत से निकाल कर छाँट कर अपने किताब याद करने के लिए आप लोगों को चुन लिया है। जिस तरह से अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, अपनी किताब की जिम्मेदारी देना चाहते हैं, आप सब लोगों को अपना ख़ास बनाना चाहते हैं, है ना। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उसी तरह से रहना है, आम बच्चों की तरह से नहीं रहना है। क्योंकि आप अल्लाह का कलाम याद कर रहे हैं, आपका चलना फिरना, आपकी बात, आपका अंदाज और बच्चों की तरह न होना चाहिए। और बच्चे जगह जगह बीड़ी सिगरेट और गांजा और भांग और नशे की गोलियाँ गाली गलौज करते हुए नज़र आते हैं। आपको ऐसे बच्चों से दूर रहना है और इन आदतों से भी दूर रहना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने आपको अपनी किताब याद करने के लिए चुन लिया। आपका बड़ा मुकाम है। हज़रत ने पढ़ा कुरान की आयत, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने अपनी किताब की हिफाजत का वादा किया, कहा कि हमने कुरान करीम को उतारा है, नाजिल किया है और इसकी हिफाजत भी मैं खुद करूँगा। कैसे हिफाजत करेंगे अल्लाह ताला? आप लोगों के ज़रिए। आप कुरान को याद करेंगे, अपने सीने में महफूज करेंगे और इसी ज़रिए से अल्लाह ताला अपनी किताब की हिफाजत करवाएंगे। इसलिए आप तमाम लोगों को मेहनत से, मशक्क़त से अपने उस्ताद की अदब और एहतराम और उनकी बातों को बर्दाश्त करके इस काम को आप लोगों को अंजाम देना है ना। आप तमाम लोग अपने घर को छोड़ दिया है, छोड़ा है ना। ए बच्चों, आप सब लोग अपने घर को क्यों छोड़ा है? पढ़ने के लिए। माँ बाप को क्यों छोड़ा है? तालीम हासिल करने के लिए। अपने गांव समाज भाई को क्यों छोड़ के आए हैं? क्यों छोड़े हो? तालीम हासिल करने की ना। अच्छे खाने को क्यों छोड़ा है आप लोगों ने? अच्छा खाना, अपना गांव, अपना घर, अपने माँ बाप की मोहब्बत, भाई के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलना कूदना, ये तमाम चीज़ों को, तमाम कुर्बानियों को आपने सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया है कि हमको इल्म हासिल हो जाए,
हम कुरान करीम के हाफिज़ बन जाए। तो इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए आपका रिश्ता, आपका नाता तालीम से मजबूत होना चाहिए। ये बड़ा कीमती वक्त है, बाद में आपको बहुत अफसोस होगा कि काश के और मेहनत करते, हम अच्छे से पढ़ते। हर बच्चे को इस बात का अहद करना है कि कोई पढ़े या ना पढ़े, हमको पढ़ना है। कोई बात समझे ना समझे, हमको समझना है। हमको यहाँ पढ़ने के लिए आए। इस बात को समझ कर चलिएगा तो आपकी दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह ताला ने आपके लिए बड़े बड़े वादे किए हैं। कहा है कि जो हाफिज़ बनता है, कुरान को याद करता है, उसकी बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएगा, अपने ख़ानदान वालों को ले जाएगा। इसी तरह से बड़ा मर्तबा, मकाम, ऊँचा मकाम है। हम सबको अपने मकाम को, मर्तबे को पहचानना है और खूब मेहनत करना है, अच्छा हाफिज़ बनकर निकलना है ना। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए। हम सबों के लिए कुरान याद करना, उसको अपने सीने में महफूज करना आसान फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। तो बहुत अच्छी बात आई, अल्हम्दुलिल्लाह, कीमती बात आई तालीम के ताल्लुक़ से। और ये एक फीलिंग अपने जहन में बसा लेना चाहिए कि मदरसा कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। क़ारी साहब बैठे हैं, मेहनत अपनी होती है। तालिब इल्म जिस तरीके से मेहनत करेगा, असातिज़ा की तवज्जो और लगन और उनकी फ़िक्र भी उनकी तरफ ऐसे ही होगी। इस तरीके से जब मेहनत होती है तो ये छोटे मदरसों से ही बड़े मदरसों में जाते हैं। और आज इस मकाम पर हज़रत क़ारी साहब बैठे हैं या बड़े मदरसे के उस्ताद बने हैं, तो उसी मकाम पर बैठ करके निकले हैं वहाँ से। उन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा, मशक्क़त को जारी रखा और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े इदारे के उस्ताद अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। इंशाअल्लाह हम सब लोग इरादा करें कि मदरसे में रहेंगे तो लगन के साथ पढ़ेंगे, शौक़ अपने अंदर पैदा करेंगे, जज्बा पैदा करेंगे। हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, दारुल देवबंद में फरमाया करते थे वो उस्ताद दौरान हदीस कि आप मुस्तफ़ा हैं। मुस्तफ़ा का मतलब होता है चुनिंदा है, सेलेक्टेड है, इंतखाब किए हुए हैं। वरना गांव में और भी बहुत सारे बच्चे सब घूम रहे हैं, गांव के अंदर में और बच्चे सब घूम रहे हैं, लेकिन तमाम गांव के बच्चों में तुम्हें छांट करके वहाँ निकाला है एक ऐसी तालीम के लिए जिस तालीम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने हासिल किया। उस तालीम के लिए जो है हमें मुंतखब किया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम्हें बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दीनी तालीम पढ़ने वाले को, सीखने वाले को और सिखाने वाले को बेहतरीन का है। दुनियावी तालीम वाले को नहीं, स्कूल और कॉलेज वाले को नहीं, यूनिवर्सिटी वाले को नहीं, लेकिन कुरान पढ़ने वाले को और कुरान पढ़ाने वाले को बेहतरीन है। इसलिए अपने मकाम और मरतबे को समझना है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात का। बतौर ख़ास हमारे आज के मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना क़ारी अमजद साहब, उस्ताद मदरसा तजवीदुल कुरान खैबर चंपारण, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से कुछ चंद जुमले इन्होंने फरमाया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कही गई, सुनी गई, हम तमाम लोगों को, मदरसे के तमाम तलबा को अमल करने की तौफ़ीक़